میرے بھائی نے جائیداد کی لالچ میں مجھے ادھر نظر بند کیا. میں نے پڑھایا ہے چائنا تک، اس کو بھیجا تعلیم کے لیے. میں نے اپنی 2 ایکسلائیاں میری گاڑیاں تھیں، میں نے دونوں بیچ کر، ایک کیری ڈبہ تھا وہ تینوں بیچ کر اس کی تعلیم کے سارے پیسے بینک بیلنس اپنا اس کے اوپر لگا دیا، اس کی تعلیم پر. آج وہ مجھے یہ صلہ دے رہا ہے کہ میرے 5 سال سے ادھر نظر بند جا میں مجھے کیوں انہوں نے 5 سال رکھا، میری زندگی کی قیمتی 5 سال کیوں ضائع کی. مجھے بھی 10-12 سال ہو گئے میں ادھر، میں گھر والے چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ اب لینے آ رہے ہیں، پتہ نہیں اب کب لینے آتے ہیں. 6.5 سال ہو گئے مجھے، آپ پلیز مہربانی کرو. میں نے کوئی طرح سے دور نہیں کیا ہے، نہ کسی کا قتل کیا ہے، صرف میری بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی. 3 سال ہو گئے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہے صاحبان کلینک. صاحبان کلینک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذہنی امراض اور نشے کے عادی لوگوں کا علاج کرتے تھے، لیکن آج انتظامیہ میرپور نے اس کو سیل کر دیا ہے. سیل کرنے کی وجہ جو سامنے آئی ہے کہ ان انتظامیہ کے پاس بہت ساری شکایات تھی کہ اس کلینک میں مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو گندا رکھا جاتا ہے، ان کو کھانا نہیں دیا جاتا اور ادویات بھی جعلی ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے سیل کر دیا. یہاں سے سیل کرنے کے بعد جو مریض یہاں پہ موجود تھے انہیں ایک اور کلینک میں شفٹ کیا گیا. پہلے ہم چل کے ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، وہاں کے کلینک کے ڈاکٹر کو اور ان مریضوں کو کہ وہ مریض کیا کہتے ہیں. یہ ادارہ بظاہر ترک منشیات اور ذہنی مریضوں کے علاج کے لیے مخصوص ہے، لیکن انتظامیہ میرپور نے یہاں کی ناقص خدمات کے باعث اسے سیل کر دیا اور ایک ذمہ دار شخص کو یہاں سے گرفتار کر لیا. یہاں داخل مریضوں کو دوسرے نجی ادارے میں منتقل کیا گیا ہے. جے کے نیوز نے جب مریضوں میں سے کا انٹرویو کیا تو ان کی زبانی یہ بات سامنے آئی کہ یہ ادارہ دراصل خاندانی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کی ایک جیل ہے. جو لوگ یہاں بند ہیں انہیں 5 سال تک اب سے بجا میں رکھا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کو جائیداد سے دور رکھنا ہو تو یہ صاحبان نامی ادارہ لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھاتا ہے اور یہاں قید کرتا ہے. یہ الزامات بے بنیاد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مریضوں کی 5 سال سے یہاں پر موجودگی سوالات اٹھاتی ہے. ان میں ایک شخص کی کہانی خاص طور پر متاثر کن ہے. وہ برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور 3 سال سے یہاں قید ہیں، جبکہ ان کا کل وقت تقریباً 6 سال کا بنتا ہے، جس میں 1 سال تک یہ شخص واپس برطانیہ رہ کر آیا ہے. شروع 2018 سے میں آیا تھا نا UK سے ڈیوزبری، تب میں شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا. پھر جب میں ادھر آیا نا میرے بیٹے کی بھی شادی ہوگی، بیٹی کی بھی شادی ہوگی، میں نے نصیحت کر دیا، میں سب کچھ چھوڑ دیا. اب ان کا مستقبل ہے نا بچوں کا. پھر 1 سال کے لیے مجھے گھر جانے دیا، میری بیوی کے ساتھ لڑائی ہوگی. پھر 3 سال ہو گئے میں ادھر، صرف میری بیوی کی وجہ سے لڑائی. ہماری پراپرٹی اسلام آباد میں، ایک بھائی نے پراپرٹی جو کوٹھی تھی نا وہ اپنے نام پر لگا دی ہے. پیچھے دوسری دکانیں بزنس ہے، ایک فلیٹ وہ ابھی میرے نام پر ہے. جو کوٹھی ہے نا وہ لگا دی ہے. مجھے یہی لالچ دے کر انگلینڈ کھڑوں گا، مجھے نکالا ہے. پھر بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، پھر واپس ادھر صاحبان کلینک میں بند کر دیا. کون پیسے دیتا صاحبان کلینک والے کو؟ وہی بھائی دے. تو آپ کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے یا نہیں کچھ بھی نہیں. دماغی طور پہ نہیں سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے. پڑھے لکھے آپ؟ میں GCSE میٹرک توڑی ہوئی، ایکویولنٹ میٹرک GCSE. آپ شام نہیں کرتے تھے؟ کام کرتا تھا نا، پہلے کرتا تھا، اپنا بزنس ہوتا تھا. وہ بھی دنیا سیلف امپلائڈ، بس شراب پر وہ ضائع ہو گئے. وہ 20 سال پہلے ایک ہی بات ہے. 20 سال کے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں؟ 6.5 سال. 6.5 سال جی. اتنا لمبا عرصہ کیوں؟ بس وہ کہہ رہے، ڈاکٹر کہہ رہے آپ ٹھیک ہو گئے، گھر جا سکتے ہو. فیملی آ نہیں رہی ہے، لے کر نہیں کھائے. ریکویسٹ کیے نہیں سن رہے. میں خود تنگ آ گیا ان کو کہہ کر. اپنی فیملی کو پیغام دیں نا کوئی، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، 6.5 سال ہو گئے مجھے. آپ پلیز مہربانی کرو. میں نے کوئی طرح سے دور نہیں کیا ہے، نہ کسی کا قتل کیا ہے، صرف میری بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی. 3 سال ہو گئے. اس تو بعد میں ادھر میرا پنجاب ہے وہ جیل گیا UK میں،
وہ पाउडर बेच रहा था, वो सजा काट कर बाहर भी निकल आया है, अपनी जिंदगी जी रहे। मैं अभी सिर्फ बीवी को लड़ाई होगी, मारा भी नहीं, सिर्फ झगड़ा हो गया बातों चीज़ों में, और मुझे 3 साल हो गए, मैं अभी भी इधर फंसे हूँ। मैं सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी क्या किधर जा रही है, वेस्ट हो रही है। मेरी माँ बहुत हुई है, जनाजा उनका मैं जनाजा भी नहीं नसीब होया। आप मुझे घर ले जाते थे ना, वो भी नसीब होता है। इधर पूरी डाई है इस्लामगढ़ में, मेरे मामे ने, उन्होंने भी मुझे नहीं खाया पूरी में। पिंड दादन खान जेलम के एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाते हुए बताया कि वो अपने भाई की तालीम के लिए 3 गाड़ियां बेचकर चीन भेजने में मददगार थे, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई पर नशे का इल्ज़ाम लगाकर ज़बरदस्ती साहिबान के लोगों से उठवा दिया। मैं 5 साल से साहिबान क्लिनिक में नज़रबंद था। मेरी करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद है। मेरे भाई ने मुझे नज़रबंद किया हुआ है। 5 साल से मैं इधर जुल्म सितम का सामना कर रहा था। मुझसे बर्तन धुलवाते थे, सफाइयाँ करवाते थे, टॉयलेट साफ करवाते थे, मारते थे, बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करते थे। खुसूसन नासिर साहब और जावेद साहब, ये जो उनके एमडी बने हुए थे, और मैं DHO साहब का और DC साहब का बहुत ज़िली इंतज़ामिया के बहुत मशहूर हैं। दिल से उन्हें उनके बच्चों को भी दुआएं देते हैं कि उन्होंने हमें इस कैद से निजात अता फरमाई है और हमें आज़ादी की सांसें नसीब फरमाई हैं। हमें मेरे भाई ने जायदाद की लालच में आकर मुझे वहाँ पे एक साहिब पिंड दादन खान से हूँ और हमारी जायदाद मियाना गोंदल में ज़िला मंडी बॉलदी में, यहाँ पर उन्होंने मुझे उठाकर घर से लिया। भाई ने फ़ोन किया था कैसे ले जाए। नशा करते थे? जी नहीं, मैं नशा नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी हूँ। मैं कोई मुझ में ऐब नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ऑलरेडी मैं बिल्कुल फिट हूँ। मेरा अपना मेडिकल स्टोर है, उस पर भाई ने कब्जा कर लिया है। उस जो ज़मीन है हमारी 2 मरबे ज़मीन है, वो उस पर उसने कब्जा कर लिया और मुझे इधर नज़रबंद करवाया। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और मसाइल का सामना करना पड़े। रमज़ान मुबारक में भी अफ्तारी में 2 रोटियां गिन कर देते थे और वो उसका भी हम भूखे रहते थे। हमें अफ्तारी भी ठीक तरीके से शहरी भी नहीं और वहाँ पे करवाते थे। मैट्रेस बहुत गंदे पुराने और टाइल्टें गंदी और बहुत ज़्यादा बुरा हालात थे उनके। मेडिसिन सारी एक्सपायर, मैं खुद जानता हूँ, मेरा अपना मेडिकल स्टोर है, मैं ज़ाती में हर मेडिसिन को जानता हूँ, सारी मेडिसिन एक्सपायर थी और गैर में खाना बिल्कुल पानी दाल किसी ना काम की, बिल्कुल पानी की तरह और डांट डपट। मेरे भाई ने सिर्फ जायदाद के लालच में आकर मुझे इधर इतने अरसे से 5 साल से नज़रबंद करवाया हुआ है। फीसें दे रहा है, हमारे ऊपर जो खर्च होता है वो 6,000 रुपये होता है, जबकि मेरी 1 लाख रुपया फीस है महीने की। तो इन्हें बाकी 94,000 रुपया साहिबान क्लिनिक वालों को बचता था। ये आराम माल खाते रहे हैं। इनका सख्ती से ज़िले इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए और उनको करार वाकई सजाएं देनी चाहिए, ताकि इन्होंने इंसानियत की तजलील किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया हमारे ऊपर। यह मुतासरा शख्स मुतालबा करता है कि इसका मेडिकल कराया जाए और अगर वो ठीक हैं तो अपने भाई और डॉक्टर्स के खिलाफ अब से बिजा की कार्रवाई की जाए। हमारे मेडिकल होना चाहिए और हमें हमारे लिए कोई ऐसी टीम तश्कील दें जो हमें दोबारा इस किस्म के कोई भी हमारे साथ हरकत ना कर सके। हमारे भाई को भी सज़ा दी जाए और साहिबान क्लिनिक वालों को भी सज़ाएं दी जाए ताकि उन्हें इबरतनाक सज़ा का अंजाम। मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि मुझे यहाँ से जल्द अज जल्द निकाला जाए और मुझे ज़िली इंतज़ामिया से, DC साहब से, DHO साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे अपने घर भिजवा दिया जाए ताकि मैं अपने बीवी बच्चों में जाकर रहूँ और आपको बेशुमार दुआएं दूँ और आपको। तो आपको मसला क्या है कि आप 5.5 साल मुसलसल कैसे रह सकते हैं? सिर्फ भाई ने जायदाद की लालच में मुझे इधर नज़रबंद करवाया। जायदाद कितनी है आपकी? 2 मरबे। तो 2 मुरब्बे, तो आप कितने भाई हैं? बस 2 ही भाई हैं। 2 भाई हैं। तो दूसरा भाई क्या करता है? वो डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है। अगर वो MBBS डॉक्टर है और वो जायदाद के लिए कर रहा है या मैंने पढ़ाया है, चाइना तक उसको भेजा है तालीम के लिए। मैंने अपनी 2 एक्सलाइयाँ मेरी गाड़ी थी, मैंने दोनों बेचकर, एक कैरी डब्बा था वो तीनों बेचकर उसकी तालीम पे खर्च कर दी। मेडिकल स्टोर के सारे पैसे, बैंक बैलेंस अपना उसके ऊपर लगा दिया उसकी तालीम पर। आज वो मुझे ये सिला दे रहा है कि मेरे 5 साल से इधर नजरबंद, वो मुझे पूछ रहे था क्यों नजरबंद? कोई आपने लड़ाई झगड़ा किया था? कोई थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं आपको कुछ हुआ? कोई इशू नहीं है इस किस्म का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ और कोई भी मुझे टेंशन नहीं है इस किस्म की। मतलब आपका मेडिकल भी कराया जाए तो आप फिट हूँ। इसका मतलब है आपको यहाँ पे जबरदस्ती कैद किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है, दूसरे तरफ से अगवा करके एक जगह पे रखा हुआ है। ये जो है
अब से बेजा का बहुत ज़्यादा पर्चा होता है इनके ऊपर। अब से बेजा का मेरी तरफ से नासिर साहब और जावेद साहब पर, उनके हमले पर, साहिबान क्लिनिक पर मेरी तरफ से पर्चा करवाया जाए, उन पर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए और FIR दर्ज करवाई जाए। अब से बेजा में मुझे क्यों उन्होंने 5 साल रखा? मेरी ज़िंदगी के कीमती 5 साल क्यों ज़ाया कि मैं बीवी बच्चों से दूर रहा? तो आपको कौन सी दवाइयाँ खिला रहे हैं? कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं आपको? मुझे कोई दुआई नहीं देते, क्योंकि आपको कोई कोई ज़रूरत मसला नहीं नहीं है, है मुझे। तो सिर्फ आप यहाँ पे अंदर रह रहे हैं। फीसें बटोरने के चक्कर में, पैसे के लालच में इन्होंने मुझे। तो भाई ने बहाना क्या किया यहाँ रखने का कि दिमाग नहीं ठीक? ये नशा करता है। कौन सा नशा? कोई नशा नहीं, मैं सादा सिगरेट भी नहीं पीता। नहीं, अगर नशा करते थे तो 5 साल पहले करते थे ना? नहीं करता था 5 साल, उस वक्त भी नहीं करते थे। नशा आप करते नहीं है, जी। लेकिन आपको इसलिए यहाँ पे लाया गया कि आप नशा करते हो। और कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल। नॉर्मली आप तो मेडिकल के साथ खुद भी वाबस्ता है, जी। तो एक बंदे को कितना अरसा रहना चाहिए? 3 माह रहना चाहिए। 3 माह में टोटल नए RBC, टोटल नया खून बन जाता है बंदे पर। 90 दिन में मंशियात के मरीज का नया खून बन जाता है। उसको किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती ही नहीं है, उसका टोटली खून ही नया बन जाता है। 3 माह से ज़्यादा आप किसी सूरत भी से नहीं। मुझे भी 10-12 साल हो गए मैं इधर, मैं घर वाले छोड़ के गए हैं, तो वो अब लेने आ रहे हैं, पता नहीं अब कब लेने आते हैं, ये बता नहीं रहे मुझे नहीं मालूम। मुझे इधर घर वाले छोड़ गए हैं। बस इसको दलाल क्या कहते थे उधर, गाड़ी के पैसे देते आप घर चले जाएंगे, इसकी फोन भी नहीं आते, फोन भी नहीं आता। पैसे आते हैं, पैसे फीस आती है। ये दोनों के साथ मैं रह रहा हूँ, ये दोनों ही मेरे साथ हैं, तब के मैं ये भी नहीं घर जा रहा, मैं भी इधर। ये मुमकिन है कि कुछ लोग वाकई ज़हनी मरीज हों, लेकिन इनके 5-5 साल तक इस खुद साख्ता जेल में रहने की हकीकत एक संगीन इखलाकी और कानूनी मसला है। हुकूमती अदारों और दीगर मुतल्लिका सोसाइटी को इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करानी चाहिए, ताकि अगर कोई बेकसूर अफराद जबरदस्ती जायदाद के लिए कैद रखे गए हैं तो इन मुल्ज़मान को सख्त सजा दी जा सके। इस सूरत हाल ने हुकूमती अदारों और आम माशरती अफराद को एक अहम पैगाम दिया है कि ऐसे मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वाक़या जो हुआ है वो बेसिकली जो ओनर से उनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था और आपस में सुलह सफाई ना होने की वजह से ना मैं भी वहाँ जाता रहा हूँ, कुछ पेशेंट देखता रहा हूँ मैं, लेकिन पिछले 2 महीने से मैं भी नहीं गया। ठीक है। तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, तो जिस वजह से वहाँ पे अमले वाले खुद ही मेडिसिन दे रहे थे और कुछ शिकायत और भी मिली हैं कि सफाई नहीं थी, खाना अच्छा नहीं था, दवाइयाँ प्रॉपर नहीं मिल रही थी। तो ये शिकायत कुछ गई हैं AC साहब के पास, DHO साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास। ठीक है। उसके बाद पूरा एक ड्रग इंस्पेक्टर साहब में हमारे दोस्त हैं ज़ियाउल्लाह साहब, उन्होंने वहाँ नोट किया और फिर उन्होंने गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट दे के तो आखिर में आज छापा करके तो उसको सील किया गया। बेसिकली जहाँ भी रिहैब सेंटर्स हैं, अगर वहाँ पे तसल्ली बख्श ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, पेशेंट को काउंसलिंग और ट्रीटमेंट की बजाय अगर आप मारेंगे और उनको प्रॉपर डाइट नहीं देंगे, उनकी सफाई का ख्याल नहीं करेंगे, कुछ और सेंटर भी इधर है, मीरपुर में भी है जिनका सेम रूटीन पे वो काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर नहीं है उनके पास, कोई क्वालिफाइड बंदा नहीं है। इसमें मेरी आपके मीडिया के थ्रू तवज्जो से जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, चाहे वो DC साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, DHO साहब हैं, MS साहब हैं, DG साहब हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सरकारी सतह पर एक ऐसा सेटअप बनाएं जहाँ पे हम इन मरीजों को अच्छे तरीके से रिहैब कर सकें। मैं खुद DHK हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट काम कर रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई हमारे पास वार्ड या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये अगर बना के देंगे तो मैं उसकी गारंटी उठाने के लिए तैयार हूँ कि मैं इंशाल्लाह इसको पूरा ट्रीट करूँगा। सेंटर के जो मसाइल हैं, रिहेबिलिटेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, और ये मसाइल इतने ज़्यादा तेज़ से हो रहे हैं ना जी कि चर्स है, आइस है, पाउडर है, अल्कोहल है, कोकेन है, ये मसाइल इतने तेज़ी से हो रहे हैं कि फैमिलीज डैमेज हो चुकी हैं। एट अ फैमिली इसका इन्वॉल्व हो जाता है, यंग बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंग्लैंड से लोग आ रहे हैं, उनके बेशुमार बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। तो ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि इसको इस तहरीक को ओपन किया जाए और इसके ऊपर। नाज़रीन, आपने यहाँ डॉक्टर की भी बात सुनी है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि ये जो मरीज़ हैं इनको ज़हनी मरीज़ करार दे के रखा गया है यहाँ पर। अब कुछ मरीज़ों का ये कहना है कि हमें सिर्फ हम ज़हनी मरीज़ या नशे ही नहीं है, हमें लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर रखा गया, 5-5, 6-6 साल तक आप लोगों को इन अस्पताल में क्यों रख रहे हैं। आपने सुना कि उसमें एक मरीज़ ऐसा भी है जिसने ये कहा कि मुझे जायदाद के चक्कर में यहाँ पर 5.5 साल से रखा गया है। मेरा भाई जो है वो डॉक्टर है और मैंने उसको पढ़ाया लिखाया,
اس کو جوان کیا, اس کو کام کاج دیا, اور میں اپنا میڈیکل سٹور چلاتا تھا, اور وہ مجھے یہاں پر نظر بند کر کے گیا ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا اس کے منہ سے کہ میں کوئی دوائی نہیں کھاتا, میرا کوئی بھی علاج نہیں چل رہا, میں یہاں صرف نظر بند ہوں. اب یہ بات تو ایک مریض کا کہنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے جہاں پر اتنا بڑا کام کیا کہ ان کو یہاں سے آزاد کر کے ایک اور جگہ پہ لے گئے, ان کا باقاعدہ کوئی میڈیکل بورڈ بنایا جائے سرکاری طور پہ, وہ جو چیک کرے کہ واقعی ان کو اتنا دیر تک رکھنا ضروری تھا یا نہیں تھا, اور جو رکھا ہوا ہے یہ ضروری ہے یا نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ نہ صرف صاحبان کی بات چل رہی ہے کہ کلینک والے یہاں پہ کیا کرتے تھے, یہ کلینک والے اگر تو یہ بات سچی ثابت ہوتی ہے کہ جداتوں کے چکر میں لوگوں کو یہاں پہ وہاں اب سے بجا میں رکھا ہوا تھا, تو اس پر ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے. اس پر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھتے رہیے JK نیوز.